السلام علیکم. دس از انیسا فرام سنوبر انسٹیٹیوٹ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بورڈ آف پیس. لیٹ می بگن بائی ویلکمنگ آور گیسٹ. وی ہیو امبیسڈر اعزاز چودھری, فارمر فارن سیکرٹری اینڈ چیئرمین سنوبر انسٹیٹیوٹ. امبیسڈر نغمانہ ہاشمی, فارمر امبیسڈر ٹو چائنا, بیلجیم اینڈ یورپین یونین. ڈاکٹر قمر چیمہ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر, سنوبر انسٹیٹیوٹ. Welcome and thank you for your time. Thank you. I would like to start our discussion with Ambassador Eazaz Chaudhry کہ وہ اپنے opening remarks دیں. Sir, please. امبیسڈر آپ کو آواز آئی؟ Right. مجھے پوری طرح آواز نہیں کٹ گئی تھی. سر آپ کائنڈلی آپ اپنے opening remarks اس ٹاپک پہ شیئر کریں. Alright, okay. تو چیمہ صاحب یہ اردو میں ہے انگلش میں؟ اردو مکس کر لیں. ٹھیک. تو شکریہ انیسا, اور اٹس اے پلیجر ٹو بی بیک ود قمر چیمہ اینڈ نغمانہ ہاشمی صاحبہ. بورڈ آف پیس کا اب کل ہم ٹی وی پہ سب دیکھ رہے تھے, ویری امپورٹنٹ میٹنگ. اب اس پہ میں 2-3 باتیں پہلے کہہ دیتا ہوں, پھر ہم بات چیت کرتے ہیں تو آگے چلے گی. پہلے یہ کہ اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, کیا ہماری توقعات ہیں, یہ کیا کرے گا یہ بورڈ آف پیس. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان سمیت جتنے ملک شامل ہو رہے ہیں ان کی خواہش اور کوشش تو یہ ہوگی کہ یہ جو سیز فائر ہوا تھا, جو پچھلے سال نومبر سے اکتوبر سے چل رہا ہے, وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ ابھی بھی کوئی 600 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اس میں. اور اسرائیل کی ڈیفنس فورسز جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر ابھی بھی اس طرح کی کارروائیاں روکی نہیں ہیں, بلکہ آدھے غزہ سے زیادہ پہ قبضہ کیا ہوا. تو سیز فائر کسی طرح انشور کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے اس بورڈ آف پیس کی. دوسرے نمبر پہ ہے ریکنسٹرکشن. اور ابھی میں نیتن یاہو صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ریکنسٹرکشن کریں گے اس وقت جب یہ ڈی ملٹرائز ہو جائے گا. تو ڈی ملٹرائزیشن سے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ حماس جب ڈی ملٹرائز ہو جائے گا تو شاید یہ ہم چلیں گے اس کے اوپر. بھائی پوائنٹ از دس کہ جی ڈی ملٹرائزیشن میں آپ کی ڈیفنس فورسز بھی جائیں گی تو تب ڈی ملٹرائز ہوگا نا. تو وہ گارنٹیز لینا پڑیں گی بورڈ آف پیس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو, کہ یہ کس طریقے سے ہم اس کو ڈی ملٹرائز اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے بھی ہو. اور تیسری یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی گارنٹی ہونی چاہیے ہمارے جیسے ملک جو اس میں بیٹھے ہیں, کہ کوئی ایک روڈ میپ ٹورڈز فلسطینین اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی جائے. جب تک فلسطین کا اصل مسئلہ آپ اس کا حل پیش نہیں کرتے ہیں تو یہ تو بہت عارضی قسم کی چیزیں ہوں گی. یعنی اسرائیل کی اجارہ داری کو بیسیکلی آپ سینکٹیفائی کر رہے ہوں گے, ریگولرائز کر رہے ہوں گے. تو یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان, ترکی, سعودی عرب اور دیگر ممالک جو عرب اور مسلم ممالک ہیں, کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں اس کی بھی تو ویژن دے نا آگے ساتھ, کہ چلے ابھی تو فی الحال جنگ روکیں گے, ریکنسٹرکٹ کریں گے, لیکن کو فلسطینی ریاست کے بارے میں بھی کوئی کمٹمنٹ کی جائے جو فرم کمٹمنٹ ہو. تو یہ میرے خیال میں توقعات ہیں اس کے ساتھ. اب اس میں کچھ چیلنجز ہیں. پہلا بڑا چیلنج جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی فلسطینی نمائندگی نہیں ہے اس بورڈ میں کسی قسم کی, سارے باہر کے لوگ ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ سارا کا سارا بورڈ جو ہے نا, it builds around the personality of ڈونلڈ ٹرمپ. یعنی وہی اس کے چیئرمین ہیں, وہی اس کے فیصلہ ساز ہیں. یعنی انسٹیٹیوشنل اپروچ جو ہے مجھے وہ نظر نہیں آ رہی ہے ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے. ایک اور یہ کہ اس کے اندر کوئی کلیئر مجھے روڈ میپ دکھائی نہیں دیا. ٹھیک ہے UN ریزولوشن میں ذکر کیا گیا تھا پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا, لیکن اس طرح کی مجھے تو بازگشت نظر نہیں آ رہی. اور چوتھا وہی میں جس طرح کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کوئی مجھے کردار ابھی تک کم ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ اسی طریقے سے اپنی زور آوری کر رہے ہیں.
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ صورتحال ہے. پھر ایک بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے کیوں جوائن کیا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے میرے خیال میں اس کے اوپر اگر دوسروں کی رائے بھی طلب کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا. جی جی بالکل، جیسے امبیسڈر صاحب نے بولا ہے کہ سیز فائر کی افیکٹونیس کے بارے میں بات کی ہے، تو ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر امبیسڈر نعمانہ سے ہم لوگ اس پہ فردر کوشچن کریں گے کہ میم ہاؤ ڈو یو سی دس بورڈ آف پیس؟ مطلب دو وی سا دیٹ دا فرسٹ فیز آف سیز فائر واز ٹیکٹیکلی افیکٹو، پر اس نے جو وار تھا اس کو اینڈ نہیں کیا، کانفلکٹ کو اینڈ نہیں کیا، بلکہ ایئر اسٹرائکس اور جو آرم ایکسچینجز تھے وہ کنٹینیو رہے. سو وٹ ڈو وی ایکسپیکٹ from this board of peace, and how has this global media framing influenced international response to Gaza? How do you see that? آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. امبیسڈر اعزاز چودھری نے آلریڈی بہت ہی مفصل طریقے سے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں وہ تو بتا دیے ہیں اور بیسک ایکسپیکٹیشنز بھی بتا دی. میرا شروع ہی سے تھوڑا سا ذرا اس پہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. ٹو بگن وتھ یہ ایک بورڈ بنایا گیا ہے جو صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی امپورٹنس اور ان کا جو اپنا ایک ویژن آف ہم سیلف ہے کہ جی میں بہت بڑا پیس میکر ہوں اور میں یہ کر دوں گا، اور خود وہ اس کے لائف پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں، چیئرمین بھی بن گئے ہیں. اور اس میں جو اس کا مجھے فائدہ بیسیکلی آپ مجھ سے بہت آنیسٹلی اگر پوچھے تو مجھے یہ کوئی بہت زیادہ افیکٹو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں میرے ذہن میں، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہی ہوں. ٹو بگن وتھ دیکھیے اس بورڈ آف پیس میں کوئی بھی جو بالکل ٹرمپ صاحب کے اور امریکہ کے الائز ہیں جس میں یورپ شامل ہے، تو وہ انہوں نے سب نے اس میں آنے سے انکار کر دیا ہے. اور سب کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ کامن ہے کہ یہ ملٹی لیٹرلزم کو بیسیکلی کل کر رہا ہے اور یو این کو سائڈ لائن کر رہا ہے. اور تو کیا یہ درست ہوگا ایک ایسے موقع پہ اس کو جوائن کرنا جب کہ ساری دنیا چاہ رہی ہے کہ ملٹی لیٹرلزم کے تھرو ہو، کوئی اس کی کوئی بیسس ہونی چاہیے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے اعزاز چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ بورڈ بنا ہے غازہ میں امن لانے کے لیے، غازہ کی کنسٹرکشن کرنے کے لیے، غازہ کے لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے. لیکن دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ تینوں نے مل کے پہلے میرا گھر برباد کیا، مجھے مارا، جینوسائڈ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی آپ کا بنائیں گے، ہم ہی رول سیٹ کریں گے اور آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ بس آرام سے سائٹ پہ ہو کے بیٹھ رہے ہیں. تو یہ تو مجھے لاجک بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے جیسے ممالک جو بہت زیادہ پیلسٹائن کے حق میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس کا ڈیوریبل جو کوئی نتیجہ نکلے گا وہ صرف 2 اسٹیٹ سولوشن میں ہے، اور اگر آپ اس کی طرف نہیں جاتے اور اس میں کسی بھی قسم کی اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ بات اس طرف جائے گی، تو کیا جیسے میں نے پڑھا تھا کہیں جو لاجک ہم لوگ دے رہے ہیں کہ جی ہمارا بورڈ میں ہونا بہت اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ ہم پیلسٹینینز کے انٹرسٹ کو گارڈ کر سکیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ان ممالک کو جو ممبر ہیں بورڈ آف پیس کے، ان میں سے جو مسلم ممالک بھی ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو پیلسٹینینز کا نمائندہ بنا سکتے ہیں؟ جبکہ پیلسٹینینز نے تو آپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی، انہیں تو کیا گیا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی اس کو جو وہاں کی پولیس فورس ہے غزہ کی وہ ہیلپ کرے گی، اور وہ بھی ہم ان لوگوں کو چنیں گے اور ان کو اسکرین کریں گے جو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ تو دیکھیں ایسے ہی ہے کہ آپ گھر میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو ڈکٹیشن دے رہے ہیں. تو ہونا تو
चाहिए था कि आप पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इसका हिस्सा होना चाहिए था। पहले आपने जो एग्रेसर है उसको अपने सामने टेबल पे बिठा लिया है, इजराइल से आप बात कर रहे हैं, वो आपके आगे शराइत रख रहा है, और जहां जेनोसाइड हुई है, जिन लोगों का घर है, जिनका मसला है, वो टेबल पे मौजूद ही नहीं है। इसी तरह अब वो हुआ कि जी 10 बिलियन जो है वो ट्रम्प अमेरिका देगा, 7 मिलियन और स्टेट्स ने जो है वो कर दिया है, प्लेज कर दिया है 9 ने मिलके, जिसमें ऑलरेडी आपने देखा होगा कि नेतन्याहू साहब का स्टेटमेंट आ गया है कि जी हम नहीं चाहते कि किसी भी सूरत तुर्की और कतर जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में शामिल हो, या उसकी इस जो बोर्ड ऑफ पीस है इसकी डिसीजन मेकिंग में कोई इफेक्टिव हिस्सा हो। एक्सक्यूज मी, तो फिर ये किस हैसियत से इस बोर्ड में मौजूद है? क्या मेंबर्स की इक्वालिटी नहीं है? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी ना कंस्ट्रक्शन शुरू होगी ना कुछ होगा जब तक हमास जो है वो हथियार नहीं डालेगा। तो हमास ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जी हथियार नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसका मैंडेट क्या है। मतलब क्या वो, हमने जैसे कहा है कि हम पीस मेकिंग में नहीं पीस कीपिंग में, तो पीस मेकिंग कौन करेगा? और वहां पे वो कहते हैं टू इंश्योर के बॉर्डर में ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये ना हो, और बॉर्डर जो है वो उस पे अमन हो। तो कैसे अमन होगा जब जस्टिस ही नहीं होगा? अभी आप देखिए कि ये बोर्ड की पहली मीटिंग भी नहीं हुई और ऑलरेडी इसराइल ने वेस्ट बैंक से बड़ी हौलनाक खबरें आ रही हैं कि वो बहुत सारे इलाकों पे ऑलरेडी उन्होंने ये कह दिया है कि ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड एरियाज में आती हैं। तो अब वो गजा तो बेचारा अपनी जगह, वो तो वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करने जा रहे हैं, उनको आपने टेबल पे बिठा दिया है और जो इस घर के मालिक हैं वो इस टेबल पे मौजूद ही नहीं है। तो आई थिंक इसमें इसका कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आने का तो मुझे कोई भी इम्कान नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पे जो हालात इस वक्त ईरान की तरफ शुरू हो रहे हैं, आई थिंक ये भी दिस विल बी आल्सो बी ओवरटेकन बाय, क्योंकि वो एक और अगर पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो क्या होगा। लेकिन जेनरिकली जिस तरह इसको बनाया गया है, जिस तरह इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनहेरेंटली फ्लॉड है। आई एम सॉरी बट आई थिंक आई स्ट्रांगली फील दैट इट इज एन इनहेरेंटली फ्लॉड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ना चीन है, ना रूस है, ना और बाकी ममालिक हैं जो बहुत ज्यादा एतराजात उठा रहे हैं इस पे। बहुत कुछ लोगों ने कहा कि जी देखें इसमें तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स और नॉन डेमोक्रेटिक है, सेमी डेमोक्रेटिक रिजीम्स का ये एक टोला सा बन गया है, और बेसिकली रेफरिंग टू द गल्फ कंट्रीज व्हिच आर रिच बट उनके यहाँ तो उस तरह डेमोक्रेसी नहीं है। बट द वेरी बोर्ड इटसेल्फ इज नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज लाइफ चेयरमैन है उनके और उन्हीं की डिक्टेशन जो है वो चल रही है। तो फिर ये मुझे तो ये ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। और हमें खास तौर पे, चले वो बाद में बात करेंगे, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी क्लियर कि हमने वहां करना क्या है। Otherwise, तो we are going to find ourselves in deep waters. बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं कि इतना हमें वो इफेक्टिव भी जो बोर्ड ऑफ पीस है वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, और जो क्लियर कोई रोड मैप है वो भी हमें अभी तक शो नहीं हो रहा। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना अगला क्वेश्चन करूंगी डॉक्टर कमर चीमा से कि सर देन व्हाट इज द मोस्ट रियलिस्टिक पाथ टुवर्ड्स लाइक पीस इन गाजा? आप क्या देखते हैं, एंड वेयर डज पाकिस्तान फिट इनटू दैट रीजन एंड व्हाई पाकिस्तान जॉइंड बोर्ड ऑफ पीस? अगर जैसे हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ट्रम्प के लिए ये रिमार्क्स दिए हैं कि सेवियर ऑफ साउथ एशिया, तो इन सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, और कैसे हम देखते हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया। ब्रीफली देखिए, मैं ये समझता हूँ,
देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो कल वहाँ पे स्पीच की उसमें उन्होंने दो इम्पोर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने साउथ एशिया के अमन के हवाले से ट्रम्प के किरदार की बात की, दूसरी जो उन्होंने पैलेस्टाइन के हवाले से बात की वो सारी वही बातें की जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। हम चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो, रेलिवेंट जो रेजोल्यूशंस हैं यूएन के उनके मुताबिक पैलेस्टाइन को देखा जाए, उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है पैलेस्टीनियंस का उसको देखा जाए। फिर वो सीज फायर की बात की, जिस तरह वैसा साहब ने बिल्कुल सही बात कहा कि सीज फायर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी हमने बात की। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ये समझता है कि हमें जिस गजा को कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसको यूएनएससी भी कुछ नहीं दे सकी थी, दुनिया का कोई और प्लेटफॉर्म भी कुछ नहीं दे सका, तो एटलीस्ट देयर इज अ प्लेटफॉर्म व्हिच कैन प्रोवाइड समथिंग। मेरा ख्याल है कि ये वो एक रे ऑफ होप है कि जो इट कैन प्रोवाइड समथिंग। और बात चली कि जी ये जैसे फॉर एग्जांपल कि इट किल्स मल्टीलैटरलिज्म, जैसे वैसा कह रही थी, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन के पास और हम सबके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने भी कहा कि ये जो बोर्ड वजूद में आता है विद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2803 के तहत हम इसको वजूद में लेके आए हैं। सो इसकी बैकिंग या इसकी फॉर्मेशन या इसके वो पीछे जो है एक एटलीस्ट कोई ना कोई लीगल एक चीज पड़ी हुई है, तो मेरा ख्याल है। लेकिन साथ ही साथ में वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हम इसको क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। वन, पैलेस्टाइन, सेकेंडली हमें इसमें खुल के बात करनी चाहिए। देखिए वी ऑल्सो वांट रेलिवेंस, वी वांट मेन स्ट्रीमिंग, वी वांट टू बी एक्सेप्टेड कि हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में हम जाके बैठें जहां पे हम अपनी थोड़ी सी आवाज जो है वो उठा सकें। फॉर एग्जांपल इससे पीछे चले जाएं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान के ताल्लुकात ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डाउनग्रेडेड थे, अब हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो हम मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के में भी आ गए हैं। हम सऊदी अरब में देखें आप, उसकी सिक्योरिटी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। हम सूडान को मिलिट्री हार्डवेयर बेचेंगे, हम लीबिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचेंगे, हम सऊदीज के साथ पूरी तरह एंगेज होंगे। तो देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हमारे सामने खुली हैं। एक हमने जंग लड़ी, उसके बाद हमें और अंदाज से देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वी आर नॉट दी ओनली कंट्री जिसने गजा के मसले को हल करना है या फलस्तीन के मसले को हल करना है या दुनिया के मसले को हल करना है। एवरीवन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी जॉब ये है कि हम उस मसले के हल को भी चाहते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन भी चाहते हैं, एंड वी वांट के वी शुड बी रेलेवेंट एंड हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी प्रमोट हो। मेरा ख्याल है इस एंगल से देखना चाहिए, ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इससे से क्या क्या निकलेगा, क्योंकि निकल तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन से भी कुछ नहीं सका आज तक। तो ये एक्सपेक्ट करना कि बोर्ड ऑफ पीस विल बी अ रेमेडी, मैं वैसा से भी एग्री करता हूँ कि इसमें ज्यादा पर्सनल टच है एज कम्पेयर टू एक इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग। वैसा भी बिल्कुल यही कह रही थी कि इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स पे बात कर रही थी, वो बात भी बिल्कुल ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा है, हमारी रेलेवेंस बढ़ रही है, और एंड वी स्टिक टू व्हाट वी हैव बीन सेइंग ऑन पैलेस्टाइन। आई थिंक दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग फॉर अस। थैंक यू सर। अच्छा, जो अभी जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं उसमें यही है कि जो यूएन साइडलाइन हो रहा है और जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको ये अंडरमाइन कर रहा है। तो मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं एम्बेसडर एजाज चौधरी से ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि सर क्या आप ये देखते हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस है ये एक ऑल्टरनेटिव है यूएन का, और क्या रोल हो सकता है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का, जो जैसे हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो पार्ट हैं इसकी, और जो उनके इजराइल के साथ एक अच्छे रिलेशन भी है। तो आप कैसे देखते हैं इसको, मतलब कि अगर हम लोग यूएन के कॉन्टेक्स्ट में देखें या फिर हम बाकी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इसको कंपेयर करें? कोई कंपैरिजन नहीं है जी। बोर्ड ऑफ पीस एक शख्स ने इनिशिएट किया है, वो एक पावरफुल शख्स है, वो अमेरिका का सदर है और इसराइल का बड़ा गहरा दोस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा तो कुछ असूलों पर मबनी है और उस पर खड़ी है, उसके अंदर एक यूनिवर्सैलिटी है, यानी 193 मेंबर्स हैं उसके। और ये सही कहा कि इसमें चीन, रूस, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी वजह से नहीं हुआ, भारत भी नहीं हुआ। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस की रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। मसला ये हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इस मामले में कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहा था। यूनाइटेड नेशंस खुद तो कुछ नहीं है ना, वो उसके मेंबर स्टेट्स हैं, वो उसको करने नहीं दे रहे थे।
तो ऐसे में ना इसराइल जंगों से बाज आ रहा था, ना उनको जंग से रोका जा सका, ना कोई अमन की चीज बात आ रही। तो सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं और अरब ममालिक हैं वो एक बेबसी की तस्वीर नजर आ रही थी। ऐसे में जब ये एक तजवीज आई तो सारे उसमें इसलिए शामिल हो गए, कुछ जिस तरह अल जजीरा ने कहा है ना कि दिस इज दी ओनली गेम इन टाउन, इसलिए शामिल हो गए। भाई ना अक़वाम मुत्तहिदा कर पा रहे हैं तो कुछ किसी ने तो जंग रुकवानी है ना। तो चूंकि जंग रुकने का इम्कान पैदा हो गया तो पाकिस्तान जैसे मुल्क भी उसमें शामिल हो गए, और खुसूसन इसलिए कि हमारे जो अपने लाइक माइंडेड मुल्क थे सऊदी अरब और तुर्की वो भी इसमें शामिल हो गए। ये तीनों ममालिक में से पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो उनको रिकग्नाइज भी नहीं किया हुआ इसराइल, लेकिन हमने इसलिए कि चले जंग रुक जाए, सीज फायर हो जाए, उसके लिए शामिल हुए। दूसरा ये है कि भाई वहां पे 80% बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और 100 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, 2.1 मिलियन सारे। उनके लिए जो बेसिक नीड्स हैं, शेल्टर है और उनका खाने पीने का, उसके लिए जो बेसिक रूडिमेंट्री ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो इसी तरीके से जा सकती थी, वरना इसराइल ने रफा बंद की थी, क्रॉसिंग समुद्र से आने नहीं दे रहा था। कोई क्या कर सका था? कुछ भी नहीं कर सका था। या तो आप कर सकते होते तो कर लेते। तो इस वजह से फिर ये मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कि चले इस लिहाज से कम से कम फलस्तीनियों के लिए कुछ तो रास्ता निकलेगा। फिर इसमें ये भी बात सही है कि जो चीमा साहब ने कहा कि जितने मुल्क शामिल हुए बशमूल पाकिस्तान, वो समझते हैं कि उनकी अपनी भी लेवरेज बनती है, वो भी थोड़ी सी उसके अंदर उनकी एक हिस्सा ले रहे हैं। वैसे नगमाना साहब ने कहा कि भाई पाकिस्तान या कोई और मुल्क फलस्तीनियों की क्या आवाज़ उठा सकता है जब वो फलस्तीनियों का नुमाइंदा ही नहीं है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता बसद एहतराम। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है 1947 से आज तक कि हमने हर हाल में फलस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। इवन उस वक्त भी उठाई है जब कुछ फलस्तीनी क़यादत पाकिस्तान के अपने जो मसाइल हैं या अपने जो कॉजेज हैं कश्मीर समेत उस पर नहीं साथ खड़े हुए। उसके बावजूद, क्योंकि कायदे आज़म ने ये कहा था कि यहाँ सिर्फ एक रियासत होगी, वो फलस्तीन की रियासत होगी जिसमें भले जूस भी आके आबाद हो जाए, वो उन्होंने 1947 में नहीं माना और वो 2 रियासतें बन गई उस वक्त। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल ने दूसरी रियासत खत्म कर दी और अपनी एक रियासत जो है कब्जा कर लिया। अब ऐसे में पाकिस्तान ही वो वाहिद वॉइस है जो बगैर किसी दबाव के आवाज उठाता रहा है। तो मेरे ख्याल में फलस्तीनियों का हकूक के आवाज उठाने के लिए कोई किसी को शक नहीं है। और अब जिस तरह चीमा साहब ने वो नुकात बताए हमारे वजीर आजम के तकरीर के, तो उन्होंने वहां पे बैठ के सबके सामने पाकिस्तान ने हमेशा से जो आवाज उठाई है वो उठाता रहेगा। इस लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की प्रेजेंस फलस्तीन के लिए हौसला अफजा है। अब ये जो 2 दूसरे और नुक्ते हैं, एक स्टेबलाइजेशन फोर्स का है और दूसरा, उसमें भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि हम स्टेबलाइजेशन फोर्स में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये वजाहत नहीं कर दी जाती कि ये क्या किरदार अदा करेगी। ये पीस कीपिंग तो नहीं हो सकती कि वहां पे बैठे और एक तरफ वो हमास से लड़ रहे हो और दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस से लड़ रहे हो। ये कैसी पीस कीपिंग होगी? ये तो पीस कीपिंग नहीं होगी, बल्कि आप पार्टी बन जाएंगे। तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में अपने मौकफ को कभी छुपाया नहीं, वाज़ेह कर दिया और इसी वजह से अभी तक हम उसमें शरीक भी नहीं हुए। अगर होंगे भी तो कुछ वजाहतों के बाद आएंगे। जो ममालिक आए हैं, कजाकिस्तान है, मोरक्को है, इंडोनेशिया वगैरह है, वो भी शायद इस किस्म की वजाहतें मांग रहे हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि वो मांग रहे हैं इस किस्म की वजाहतें। तो सारे ये चाहते हैं कि, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके ट्रुप्स एक तरफ हमास से लड़ रहे हो, दूसरी तरफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस से लड़ रहे हो, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में इसमें बड़े मुख्तात अंदाज से चल रहा है, जो बड़ी सही अप्रोच पाकिस्तान ने फॉलो की है। फिर है कि वो जो टेक्निकल कमेटी गवर्न करेगी उसको, और उसके अंदर भी अलबत्ता उसमें कुछ फलस्तीनी तो शायद वो शामिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि लगता ये है कि उसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर साहब अपना कोई मंसूबा बनाए बैठे हैं जिसमें बहुत सारे टावर्स बनने हैं, बहुत सारे सी साइड रिजॉर्ट्स बननी हैं और उस किस्म की स्पोर्ट्स की कहते हैं फैसिलिटीज बननी है। ये सारा कुछ उन्होंने शायद पहले से बनाया हुआ है। अब वो नेचुरली, जिस तरह मैंने कहा कि जब मुसलमान और अरब ममालिक जो हैं वो कुछ खुद से कर नहीं सके, इसराइल का हाथ रोक नहीं सके और अमेरिका मुसलसल उनका साथ दे रहा है इसराइल का, जबकि इनके लिए
चीन और रूस की तरफ से उतनी कुव्वत नहीं है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो है, तो फिर ये मजबूरन ये लोग शामिल हो गए हैं। एक और नगमाना साहिबा ने जो पॉइंट उठाया था वो बड़ा जरूरी है उसके ऊपर बात करना, वाइडर एम्बिशन की, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कई बार कहते हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस एक बहुत बड़ा होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिप्लेसमेंट के अलावा अभी बात करते हैं कि जिसमें हम और चीजें ले आएंगे। अब यूरोपी तरह हट गए कि भाई कहीं ये ग्रीनलैंड के ऊपर बीच में लेके तो फतवा जारी कर दें, कि फतवा तो नहीं मतलब फासला जारी कर दें कि जनाब ये ग्रीनलैंड अब से हमारा हुआ, या भारत समझता है कि कश्मीर का बीच में आ गया तो फिर कहीं कोई ये आगे से बात कर दे, अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए ये बहुत सारे ममालिक थोड़े से रुके हुए हैं कि इसका एजेंडा की पहले वजाहत हो जाए। अगर सिर्फ गजा पे होता तो फिर भी शायद वो लोग किसी हद तक आगे आ जाते। जिस तरह पहली मीटिंग में शर्म शेख में ये सारे आए थे, बहुत सारे ममालिक उनमें से आके खड़े हुए थे, तो ये सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है मैं ये समझता हूँ कि बावजूद इसके कि बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान ने दुरुस्त कदम उठाया कि इसमें शामिल हुए और फलस्तीनियों के लिए वो आवाज उठा रहे हैं जो वो हमेशा से उठाते रहे हैं। जी थैंक यू सर। अभी आपने बिल्कुल ये बात की कि इसके जो एजेंडा है उसकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इसके फर्दर आगे चलते हुए जब हम इसको देखें। आपने ये चीज़ भी मेंशन की कि ये एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, और ये बात मैं एम्बेसडर नगमाना ने भी पहले मेंशन की थी कि ये ट्रम्प का एक अपना इनिशिएटिव है। तो आई वुड लाइक ask मैम नगमाना कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ लाइक बोर्ड ऑफ पीस आफ्टर ट्रम्प। आप कैसे देखते हैं इसको कि ट्रम्प के टेन्योर में तो जैसे इसका ये अपना इनिशिएटिव है तो इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें, लेकिन आफ्टर ट्रम्प इसके क्या फ्यूचर होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक क्लैरिफाई करती चलूँ। मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि हमने सबसे ज़्यादा पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है। जब कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ तब भी हमने सपोर्ट किया है। मैं बहुत एक टेक्निकल बात कर रही थी कि देखिए वहाँ हम आवाज़ उठाते रहे, जितनी मर्जी आवाज़ उठाते रहे। जब पैलेस्टीनियन का घर है वो, उसमें वो खुद शामिल नहीं है, तो हम उनके बिहाफ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। हम उनके इंटरेस्ट को उनके बिहाफ पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, बिकॉज दे हैवंट गिवन अस दैट अथॉरिटी। या तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कहे कि जी हमें आपने निकाल दिया है, लेकिन मुस्लिम ममालिक में से ये 1 2 3 हमारे इंटरेस्ट का जो है वो ख्याल करेंगे, एंड इफ दे एग्री वी एग्री, यू नो, वो भी नहीं है। तो आप आवाज उठाते रहे, वो तो आप कब से उठाते जा रहे हैं। दूसरी बात ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि यूएन इनफेक्टिव था, बाकी सारे लोग टोटली एग्री, एवरीबडी वाज इनफेक्टिव, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हॉस्टेज किसने बनाया हुआ था? अमेरिका ही ने बनाया हुआ था ना। अब वही इस बोर्ड को लीड कर रहा है जो, और वही अपनी ड्रीम उसकी फुलफिल हो रही है टू मेक गाजा इनटू रिवियरा। तो ये तो ऑक्यूपेशन हुई ना कि जी आप पैलेस्टीनियन का घर उन्हें भी निकाल देंगे, पैसे भी ले लें कि जी जो जो इसका मेंबर होगा, एक्टिव मेंबर होगा, जिसका कोई से होगा, वो 1-1 बिलियन रुपए भी दे दे, और खुद आप अपने ही लोगों को उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी डाल देंगे, वो करेंगे। और फलस्तीनियों से नहीं आप पूछेंगे भी आपको डेवलपमेंट में क्या चाहिए, पहले क्या है उनका, यू नो, दे हैव नो से। सो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी डिबेट है कि कोई कुछ नहीं कर सका, बिकॉज अमेरिका इस वक्त किसी को कुछ करने ही नहीं दे रहा, और उन्होंने वही कर लिया जिसको हम सब यूएन के थ्रू रोकना चाह रहे थे। तो सीज फायर तो खुद हर सीज फायर के रेजोल्यूशन को वीटो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। हर एक का जो रेजोल्यूशन था कि रास्ते खोले जाएं, इसराइल को मजबूर किया जाए कि वहां पे वो उनके लिए एक जाने दे सके, उसे किसने रोका? उसे अमेरिका ने रोका। तो वही आदमी जो उस कत्लो गारत को, उस जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहा था और किसी भी दुनिया के मुल्क को आगे नहीं चलने दे रहा था, क्योंकि वीटो कर देता था। सबसे ज्यादा वीटोज अमेरिका ने गजा के इस पिछले 2 साल में किए। तो देखिए ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि आई थिंक दिस इज एन अदर वे फॉर अमेरिका टू साइडलाइन एवरीबॉडी एंड यू नो जस्ट ऑक्यूपाई पैलेस्टाइन, बिकॉज और इवेंचुअली वो तो सारा डाइल्यूट हो जाएगा, इजराइल की वावा हो जाएगी। इजराइल जो एक यू नो बेसिकली तो
जेनोसाइड वही कर रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उससे क्रिमिनल करार दे दिया है, उसको आपने उसमें डाल लिया, उससे आप निगोशिएशंस कर रहे हैं. सो आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट. बट जहां तक ये है कि हमें क्या करना चाहिए, तो ठीक है, हमारे इस वक्त जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं शायद इस बात से सर्व होते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ बीइंग आउटसाइड द रूम वी शुड बी इनसाइड द रूम. आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट कि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा सोचा होगा और बहुत ही ज्यादा देखा होगा कि कौन इसके फवायद क्या है, नुकसानात क्या है, इसका पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं. और आई एम श्योर कि जब उन्होंने वे किया होगा कि पॉजिटिव ज्यादा है पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, तो उन्होंने ये फैसला लिया होगा. क्योंकि मतलब हमारे ऊपर ही तो अकल के हम ठेकेदार नहीं है ना. आई एम श्योर द पीपल इन पावर नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. तो उस पे तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए था, बिकॉज ये हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो है उसको सेफगार्ड करता है. बट हमें ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि जी हम ये शॉर्ट टर्म अपने इंटरेस्ट जो हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व होके बचाने की खातिर अपने आप को कोई लॉन्ग टर्म नुकसान ना पहुंचाए. I think that's something that we must not lose sight of. क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री रही है अमेरिका के साथ, हमारी उससे दोस्ती होनी चाहिए. इट्स स्टिल वन ऑफ द इट्स द लार्जेस्ट अभी भी. तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होने चाहिए, सब कुछ है. लेकिन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तो सबसे ज्यादा इंडिया के हैं इस वक्त उनके साथ. वो भी कॉशियस है इस वक्त. The Europeans are very cautious too. So I am just saying कि हमें caution का दामन बिल्कुल कभी छोड़ना नहीं चाहिए. और अब इसमें आगे क्या होगा, मुझे तो लग रहा है कि अगर पहले नहीं काबू कर सके तो अभी भी इसराइल को कोई आपने बयान अमेरिका की तरफ से नहीं देखा जो कंडेम करे जो वो वेस्ट बैंक पे अभी कर रहा है. अभी कल भी जो है वहां पे रफा पे भी अटैक हुए हैं और 3-4 जो उनके कैंप से वहां पर भी अटैक्स हुए हैं, लोग मर रहे हैं. तो आप मतलब बोर्ड ऑफ पीस बना के भी नहीं रोक सके हैं, तो आगे इजराइल को कैसे रोकेंगे और टेबल पे बिठा के कैसे रोकेंगे? आई रियली डोंट नो. थैंक यू मैम. अब हम क्विकली डॉक्टर कमर शीमा से उनके रिमार्क्स लेंगे कि ये जो बात और ये जो कंसर्न बार बार आ रहा है कि पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है बोर्ड ऑफ पीस में, तो जो कि इसकी लेजिटिमेसी को अंडरमाइन कर रही है, एंड इट राइजेस सेवरल क्वेश्चंस ऑफ अबाउट इट्स फेयरनेस एंड ओनरशिप ऑफ द पीस प्रोसेस. तो हाउ डू यू असेस दिस कंसर्न? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सारी बातें इग्नोर नहीं किया जा सकता. लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ Hamas, who did talks with the Israelis or Americans? Hamas जब टॉक्स नहीं कर रही थी तो कौन टॉक्स कर रहा था? तो कतर कर रहा था. तो बहुत सारी चीजें जो हैं, ये जो पॉलिटिकल ऑफिसेस खुले हुए थे, यही बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे थे. अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि हु इज देयर टू रिप्रेजेंट गजा के अंदर कौन है? कोई बॉडी वहां पे मौजूद नहीं है. एवरीथिंग इज विदर्ड. इलेक्शंस वहां पे हो नहीं सकते. सिचुएशन ऐसी कि वहां पे कोई मौजूद नहीं है. जो हमास अगर लड़ रही थी तो हमास डिसमेंटल्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया. सो दे नीड एन एंटायर रिप्रेजेंटेशन, उनको जरूर चाहिए. मैं समझता हूँ जी भाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो है. पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपनी जगह, पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक और एक ही चीज है ना. नहीं, वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा. लेकिन कन्वर्सेशन कौन कर रहा था? कन्वर्सेशन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, हमास डायरेक्ट कर रही थी ना. और अब उन्होंने कह दिया है इसराइल ने कि जी कतर और तुर्की जो है वो नहीं चाहते कि वो इसमें किसी भी किस्म का डिसीजन मेकिंग में उनका कोई प्रोमिनेंट हिस्सा हो. सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन. देखें, वो तो एज थिंग्स विल अनफोल्ड पता चलेगा. लेकिन सवाल हम कर रहे हैं, हमास की बात कर रहे हैं कि हमास जो थी, जो मेन, देखें पैलेस्टीनियन की अथॉरिटी का कोई कंट्रोल है हमास के ऊपर या गजा के ऊपर? उनका क्या कंट्रोल था? कोई कंट्रोल नहीं था, और ना ही वो किसी चीज में है.
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا قطر، اینڈ قطر جو ہے وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایون کہ ٹاکس کو ہوسٹیج کرنے کے لیے اسرائیل نے وہاں پہ اسٹرائک بھی کر دی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آئی تھنک جو جس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سوال بڑا لیجیٹمیٹ ہے، جینوئن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے، فرینکلی اسپیکنگ ان ریئل پالیٹک اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو دوسرے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپشنز ایگزاسٹ کر لیے ہیں. ٹو بی آنیسٹ آپ کے آپشنز اگر تھے، آپ نے کہا یو چوز ٹو فائٹ بٹ یو کوڈنٹ فائٹ، فرینکلی اسپیکنگ. مطلب آئی ول بی آنیسٹ، فار ایگزامپل آج ایران جو ہے وہ کیوں اس خطے میں نہیں ہے؟ بیکاز ایران کے سارے آپشنز ایگزاسٹ ہو گئے نا. حماس ایگزاسٹ ہو گئی، حزب اللہ ایگزاسٹ ہو گئی، سیریا ایگزاسٹ ہو گئی، ساری کی ساری ڈیٹرنس انفراسٹرکچر ایگزاسٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. ایران آج کیوں اسرائیل ایران کے اندر اٹیک کر رہا ہے؟ کیوں جون کی جنگ ہوئی؟ کیوں امریکنز دوبارہ پلان کر رہے ہیں وی نیڈ ٹو گو انٹو ایران؟ بیکاز ایران کا جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اندر جانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وین یو ہیو نو ون ٹو ریپرزینٹ، اینڈ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اگر جو لڑنے والی فورس تھی اس کا جو پولیٹیکل آفس ہے وہ انگیج کر رہا ہے، وہ جس حد تک انگیج کر رہا ہے جتنی کی ان کی پاور ہے. اور میں یہ بھی اس میں تھوڑا سا یہ بھی پوائنٹ ایڈ کر لینا چاہیے کہ when there are so many Muslim countries اور عرب نیشنز جو کہ آلریڈی آن بہاف آف حماس جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں اور فلسطین کے کیس لڑتے رہے ہیں، حماس کے جو غزہ کا کیس لڑتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں پھر اس طرح کے ڈرا بیکس اینڈ چیلنجز جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے. جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہاں پہ اسپیچ دی ہے دیٹ میکس دا کیس، ہمارا وہ موقف ہے. باقی وہاں پہ کیا ہو پائے گا اور کیا نہیں ہو پائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آل آؤٹ کم جو بھی نکلے گا وہ ساری ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اتنی کو میری انڈرسٹینڈنگ. جی اگر میں کنکلوڈ کر دوں اس کو چیمہ صاحب کہ آئی تھنک اٹس اباؤٹ 36 منٹس. یس میں یعنی اگر تھوڑا سا زوم آؤٹ بھی کر لوں تو جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے کہ پورا نظام درم برم ہے، بین الاقوامی قوانین کی کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے، اور یک طرفہ طور پر طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. تقریباً وہی چیز مشرق وسطیٰ میں بھی ہوا ہے، مڈل ایسٹ میں بھی تقریباً وہی چیز ہو رہی ہے. اسرائیل کا یعنی 2 سال تک بہیمانہ انداز میں طاقت کا استعمال جو ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. امریکہ کی تو باقاعدہ اشیر بات تھی، ان کا تو باقاعدہ اسلحہ بھی استعمال ہوتا تھا، اور یورپی بھی تقریباً ساتھ ہی تھے، اور باقی جو ممالک ہیں وہ کچھ کر نہیں سکے. تو چنانچہ اب جب یہ ایک سلسلہ چلا ہے تو سب نے سوچا تو چلو کم از کم جنگ تو رکے، لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے، اور اس میں یہ سوال سب سے اوپر ہے کہ اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ہے یا ایسے ہی چلتا رہے گا. کیونکہ اگر سیاسی حل نہیں نکالیں گے، یعنی فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی، تو یہ مزاحمت کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی. اسرائیل کی اپنی جو خواہش ہے کہ وہ ایک اجارہ دار، ایک ہیجمون بن جائے اس علاقے کا، اس کو اب عرب ممالک بھی ریزسٹ کرنا شروع ہو رہے ہیں. اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھائی اصل مسئلہ ایران نہیں تھا، اصل مسئلہ تو اسرائیل تھا. تو اس وجہ سے اب اس کا جو کینوس ہے وہ تھوڑا پھیل گیا ہے، اور اسرائیل کے عزائم بھی پھیل گئے ہیں. اور امریکہ نے سوچا انڈر ڈونلڈ ٹرمپ کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ غزہ میں اپنا اڈا بھی بنایا جائے، اور غزہ کے اندر جو لوگ جو ہیں ان کو کسی طرح زیر کر کے یا صومالی لینڈ میں بھیج دیں، عرب دنیا میں بھیج دیں، یا وہیں پہ ان کو محصور کر کے. تو کوئی انسانیت اس وقت نظر نہیں آ رہی. اس وجہ سے یہ بورڈر پیس ایک بڑی ہی ہلکی سی کاوش ہے کہ کسی طریقے سے کوئی جنگ روکی جا سکے، کچھ کم از کم تھوڑا سا ایک سیمپلنس انسانیت کا لایا جا سکے. مجھے کو بہت لمبی چوڑی امیدیں اس سے نہیں ہیں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور الٹرنیٹو کسی نے کسی کو دیا نہیں. ایران کا ایک سیپریٹ موضوع ہے چیمہ صاحب، اس پہ بے شک ایک سیپریٹ آپ ڈسکشن کر لیجئے، کیونکہ اس کا جڑا تو ہوا ہے مشرق وسطیٰ سے، لیکن ایران کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے اور ایک سیاست ہے. اور کیا یہ امریکہ جو اس وقت طاقت
का इस्तेमाल करना चाह रहा है वो करेगा भी कि नहीं करेगा, और क्या ईरान जवाब देगा कि नहीं देगा, और ये क्या नया बैलेंस ऑफ पावर बनने जा रहा है, क्या ये एक नई आलमी जंग बन सकती है या ये मामला सुलझ जाएगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल में एक अगर सेपरेट डिस्कशन कर ली जाए किसी वक्त तो ये बड़ा ही मुनासिब होगा। तो मेरे ख्याल में इसके बाद हम इस पे ऊपर खत्म करते हैं। पाकिस्तान का जहाँ तक किरदार है उसके ऊपर मेरे ख्याल हमने काफी सहरा से बात कर ली है। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अनीसा आर यू देयर? आपकी आप क्लोज कर दीजिए प्लीज। जी मेरा ख्याल है अनीसा कहीं हो गया। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब एंड एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा। इट वाज अ प्लेयर एंड फ्रूटफुल कन्वर्सेशन. Thanks for watching at the Snowbird Institute. बहुत शुक्रिया।